Now, as we start, first I'll be summarizing the chapter to you. Ki what is this chapter about? And then one by one, we would start it with NCERT. The chapters will be bit lengthy now, but of course they are very interesting also. तो सबसे पहले let us come to the chapter resources and development. What are resources and development? हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर के what are the entire मतलब कि in the entire session what will be the impact. अगर आप में से किसी बच्चे को कहीं बीच में if you feel that I'm speaking too fast so you can ask me. I'll be taking Hindi and English both for your comfortability. Then you can, if you still have any problem, you can definitely tell me ki ma'am this is a problem. Resources. The word what we say is resources. मतलब कोई भी चीज, anything which is available in the atmosphere, in the environment, जिसको हम किसी और चीज में we can convert it commercially into something else and use it for the human need is resource. Like अब ये pen है, right now this is a pen, but now what can we do? We use this pen for writing. In the classroom we also know that we use a pen for pen fighting. हम पेन फाइटिंग भी करते हैं क्लास के अंदर, एक दूसरे को पकड़ के मारते हैं, है ना. द पेन इज द सेम बट वी यूज इट इन डिफरेंट पर्पसेस. नॉट टू से कुछ लोग उसको रख के खुजरियां भी करना शुरू कर देते हैं, है ना. तो दैट मीन्स इट इज अ पेन बट वी आर यूजिंग इट इन डिफरेंट वेज. So there are many things which are available in the environment. Some cannot be used, but we have to find out कि ये कौन सी चीज है, and then we turn it into something which is commercially viable. Viable मतलब जिसको हम बनाकर बेचकर जिससे हमें फायदा हो, which is beneficial for us, उनको हम कहते हैं resources. And how do we develop? Now on the very broad category, we will be having something which is called as natural, and the second one which we have is called as a man-made. So anything which is available in the environment, like soil is available, water is available, minerals is available, then you have forest. These are all natural one which is found in the nature, whereas whichever we have made, like I was just giving the example of this pen, chair, computers, these are all man-made resources. अब हम क्या करते हैं, in your paper what it comes is you will be asked to classify the resources on different basis. We have to classify the resources on different basis. Now होगा क्या बेटा आपके, I'll be sharing the NCERT, you'll see that. Classification of resources on different basis का मतलब होता है तो वही चीज, लेकिन हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन डिफरेंट बेस. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारा होता है on the basis of life or on the basis of origin, and this particular question can come for either 1 mark or 2 marker. Either 1 mark or 2 marker. आपका ये 1 mark या 2 marker में आ सकता है कि on the basis of origin classification. And मानो नहीं मानो, this particular question has come many times, specifically in the schools. How can you classify resources on the
basis of their origin. तो पहला हमारा आता है biotic and the second one will be abiotic. Biotic and abiotic यानी कि जिनके अंदर जान होती है, means which is having the life, that all comes under the biotic. Like आपके flora, fauna, flora, flower आपके जो है they are all आपके जो है biotic. Then आपका fauna यानी कि आपके जितने भी animals हैं they are all coming under the biotic resources. Whereas anything like minerals, हमें जो minerals मिल रहे हैं they are all abiotic. You can be asked in two ways. आपसे इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है. One is classify it on the basis of origin. दूसरा आपसे पूछा जा सकता है on the मतलब कि dash and dash are biotic resources, are examples of biotic resources. So you have to write the examples. So anything which is having the life will be biotic and which is not having, that is abiotic. जैसे कि minerals आपके water. Then on the basis of exhaustibility, on the basis of exhaustibility यानी कि चीजें हमारी खत्म होने के कगार में, over a period they may not be renewed. तो renewable ये हमने सबसे ज्यादा पहले भी पढ़ा है. We have studied this in I think 6th and 7th also. Renewable and non-renewable यानी कि anything which can be formed again are renewable resources and which takes billions of years. आपके billions of years लगते हैं जिनको बनने में, वो आपके non-renewable. Like आपके many of the mineral resources आपके जो होते हैं they are all non-renewable. Whereas आपके जितने भी जैसे water, tidal energy, over the period you can form them. आप उनको form कर सकते हो. हाँ, ऐसा नहीं कि आप उनको form कर सकते हो इसलिए you can use it as we want. It's not like that. We have to use them also in a proper manner. Then on the basis of ownership, ये वाला जो क्वेश्चन है, the ownership वाला जो है, this normally comes under 3 marks. ये वाला जो है हमारा 3 मार्कर में आ जाता है. Because ownership, now who owns the resources? देखो बेटा, कोई भी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री, इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, there are something which is available in the nature, but अगर वो बहुत costly है and it has to be taken care only by the government, जैसे आपके पेट्रोल, जैसे आपका पेट्रोल. अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे घर में माँ में कुआं है, हम उसमें से पेट्रोल निकाल के अपनी गाड़ी में भरते हैं. दिस कैन नॉट बी डन. कोल. So some of the resources have to be owned only by the government. But आपके पास भी गाड़ी होगी, आपके पास भी घर होगा, आपके पास अपना लैपटॉप होगा. Those all come under what we call as your personal. So on the basis of ownership we say national, community, individual, and last but not the least international. As I said, the forest, अगर हम forest को देखते हैं तो forest, rivers, जितने भी forest हैं, जितने भी rivers हैं, on the marking of the map
जो हमारा मैप है उसमें मार्क होता है कि किस एरिया के अंदर तक वो इंडिया का है, लेकिन हमने जैसे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट इंडस रिवर जो है दैट फ्लोज इन इंडिया ऑल्सो, एंड जो इंडस रिवर है दैट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन पाकिस्तान। तो जिस एरिया तक वो हमारा है दैट वुड बी आर नेशनल रिसोर्स, उससे नेचुरल रिसोर्स, उसमें जितनी मछलियां उस एरिया के अंदर हैं दैट बिलोंग्स टू अस। बट व्हेन इट क्रॉसेस दैट बाउंड्री एंड इट गोज टू अनदर कंट्री तो वो उनका हो जाता है। लाइकवाइज फॉरेस्ट, सो ऑल द थिंग्स दैट फॉरेस्ट है आपका, रिवर्स है, इन सब की देखभाल करनी जो होती है दैट इज द ओनली ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर कि उस फॉरेस्ट को वो कैसे डेवलप करे, उस फॉरेस्ट को उसके अंदर जो है व्हाट द थिंग्स दे कैन यूज इट, हाउ दे कैन यूज इट। सिमिलरली फॉर द रिवर्स, रिवर के प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नर्मदा रिवर के ऊपर जो है वी आर हैविंग दी उसका नाम क्या, हम लोग जो है डैम बना रहे हैं, तो ऑन विच रिवर द डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड, हाउ द रिवर वाटर शुड बी यूज्ड, हाउ इट कैन बी प्रमोटेड टू इरिगेशन, ये सब कुछ नेशनल रिसोर्स है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी से कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का मतलब हो जाता है एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय पीपल टुगेदर, एनीथिंग विच इज टुगेदर, हम सब मिलकर करते हैं। टेम्पल, आपकी बुक में फ्यूनरल ग्राउंड भी दिया हुआ है, टेम्पल, पार्क। नाउ यू कैन नॉट से भाई अपने घर के अंदर हर एक के घर में टेम्पल होता है, मेरे घर में या आपके घर में सबके होगा, बट इफ देर इज अ टेम्पल इन द एरिया, अब आप ये नहीं बोल सकते टेम्पल मेरा है, हाँ वी हैव द ट्रस्टीशिप, बट द टेम्पल डज नॉट बिलोंग टू अस, द टेम्पल इज कम्युनिटी, जितने लोग उस एरिया के अंदर रहते हैं या फिर जो लोग जहां से, तो दैट इज it cannot be owned by a single person, that belongs to all the people. Park, you cannot say मेरा पार्क है, पार्क में आप भी जाते होंगे, पार्क में और भी बच्चे आते होंगे, पार्क में आंटियां भी आती होंगी, अंकल भी आते होंगे, so that's a community. Next is individual, your own house, your laptop, your phone, anything which you are having for you, मतलब आपके पापा के पास गाड़ी है, that is individual, that's his property, it's not a public property, it is his property. If you are having a laptop or you are having a phone, that is yours. Last but not the least is the international. Now how do we classify international resources क्या होते हैं? Now let us say this is the boundary of India. तो इस बाउंड्री में हम लोग इंटरनेशनल में क्या करते हैं, वाटर एंड स्पेस को शेयर करते हैं, वाटर एंड स्पेस को शेयर करते हैं। तो बट हाउ डू वी शेयर, हाउ डू वी नो कि इस वाटर के बाद हमारा जो है दिस इज नॉट आवर्स, ये दूसरे का है, हाउ डू वी नो? तो फॉर दैट व्हाट वी डू इज द इंटरनेशनल मार्केट, the international authorities are responsible. UN, United Nations, it is responsible. तो क्या होता है, जितने भी आपके इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, they will be trying to find कि एक कंट्री के 200 nautical miles, मतलब हम उसका जो है एक दायरा मतलब एक डायरेक्शन बनाते हैं कि इससे यहां तक का जो बाउंड्री है, ये तो हमारी बाउंड्री है, यहां से दे वुड बी मेकिंग द बाउंड्री विद इन द वाटर ऑल्सो एंड इन द स्पेस ऑल्सो, एंड दे सजेस्ट कि उसके अंदर वॉट एवर मटीरियल्स यू फाइंड, लाइक यू फाइंड द पर्ल्स, हमारे यहाँ पर आपके यहाँ पे कोरल आइलैंड है, you find the fish, you find some of the minerals which is only found in the water,
दे ऑल बिलोंग टू दैट कंट्री। हाँ, अगर बीच में कोई और कंट्री है, लाइक हमारा यहाँ पर श्रीलंका इज ऑल्सो देयर, तो हम उसके साथ शेयर करते हैं, वी शेयर। लाइक ऊपर हमारा पाकिस्तान है और नीचे हमारा श्रीलंका है, तो विद इन दैट नॉटिकल माइल्स हम लोगों का जो है वॉट एवर इज अवेलेबल विद इन दैट वाटर और हमारा स्पेस है, तो वी शेयर इट विद देम। एंड उसके आगे जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्स, एंड नॉट अ सिंगल कंट्री कैन ओन इट। हम जाकर उसके अंदर जो है फिशिंग नहीं कर सकते हैं, वी वुड बी वायलेटिंग द इंटरनेशनल रूल्स। उसके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं दैट हाउ यू कैन टेक अप। आप उस जगह से अगर इफ यू वांट टू टेक, देन व्हाट आर द ड्यूटीज, आपको कितना देना पड़ेगा। सिमिलरली इन द स्पेस ऑल्सो, मतलब स्पेस में जो है आपने देखा होगा, अगर अभी आप लोगों में से किसी बच्चे को याद हो, 2 years बिफोर वी हैड वन प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यू कॉल एज, देयर वाज एन अटैक, पुलवामा अटैक वाज देयर, इफ यू रिमेंबर, Yes, राइट? ma'am. हाँ, तो जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो व्हाट हैड हैपेंड एट दैट टाइम इज द एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान वाज क्लोज्ड। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस जो है वो क्लोज कर दिया था। यस, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस, तो वो जो एरिया होता है विच इज अक्रॉस दैट एरिया, दैट विल बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस एरियाज लाइक वाटर, इंटरनेशनल वाटर, स्पेस, इनको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड नॉट अ वन सिंगल कंट्री डज नॉट हैव द कंट्रोल, या फिर आप कह सकते हो कि हम इसके मालिक हैं, इट कैन नॉट बी द ओनरशिप, कैन नॉट बी डन, right? This particular question will be coming for 3 marks. Now, one of the most important, which I think every time comes in all this class in the schools, on the basis of development, on the basis of development, इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है? डेवलपमेंट मतलब अब आपके पास कोई, मतलब यू नो, many of the countries have many resources। हमारे पास में we have many kinds of resources, but we are not able to use all the resources। क्या हम सारे resources यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, इंडिया के अंदर वी आर हैविंग अ वेरी गुड क्लाइमेट, गर्मी बहुत होती है, अभी भी आप देख सकते हो। एंड नॉट ओनली इन दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरियाज लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन एरियाज में आपकी बहुत गर्मी होती है। एंड यू कैन हैव राजस्थान, एंड यू कैन प्लांट द सोलर पैनल्स देयर। देन यू हैव टाइडल एनर्जी, यानी कि ये जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर यू हैव अ वेरी गुड वेव्स, आपके तेज वेव्स आते हैं और उसको पकड़ के हम लोग जो है वी कैन क्रिएट टाइडल एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ऑफ कोर्स देर आर सम रिसोर्सेज which we say जिनमें कैपेबिलिटी है, some are developed। ये इस वाले को बेटा बहुत अच्छे से लर्न करना, बिकॉज ऑफ एंड ऑल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम इन द पेपर्स। स्टॉक रिजर्व, एंड दिस कम्स फॉर 3 to 5 मार्क्स। 3 में भी आया हुआ है, 5 में भी आया हुआ है, बट प्लीज इसको अच्छे से मतलब कि करना। नाउ पोटेंशियल का मतलब हो जाता है विच इज हैविंग द कैपेबिलिटीज, मतलब हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। वी आर ट्राइंग टू लोकेट द टेक्नोलॉजी, हम लोग जो है टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेयरएज आपका जो है डेवलप का मतलब हो जाता है द वन विच हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है,
वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, जैसे हम पेट्रोलियम को डिराइव करते हैं, वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी, एंड देन स्टॉक एंड रिजर्व, मतलब कुछ चीजों को हमने अभी टच ही नहीं किया है, वी हैव नॉट टच्ड इट। हो सकता है आने वाले टाइम में वी मे डेवलप सच टेक्नोलॉजी कि हम लोग वो जो स्टॉक में रखा हुआ है, द वन विच वी हैवंट टच, उसको हम लोग जो है धीरे 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 यूज करना शुरू कर दें इन डिफरेंट मैनर्स। स्टॉक, आपने अपनी दुकान जाते हो, ठीक है ना, मतलब यू गो टू द शॉप, राइट, दुकान वाला आपको बोलेगा अभी मेरे स्टॉक में ये नहीं है, मतलब आपने कहा कि भैया मुझे जो है इंग्लिश की एनसीईआरटी चाहिए, तो कहता स्टॉक में नहीं है, बोलता है ना। नॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक। हम जब मतलब लेट अस से कि हमारे घर में एक अलमीरा है, हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को रख देते हैं, हम बाद में यूज करेंगे, हम उसको बाद में यूज करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस हर्षित, इन्वेंट्री, वेरी वेरी नाइस आंसर। तो हम उसको जब बाद में यूज करेंगे बोलते हैं वो था स्टॉक, यानी कि राइट नाउ वी आर नॉट इन नीड ऑफ देम, अभी हमें उसकी नीड नहीं है, सो वी हैव नॉट येट डेवलप्ड एनी टेक्नोलॉजी फॉर दैट। इन द सेम मैनर, मतलब स्टॉक का ही आपका एक हिस्सा होता है रिजर्व, स्टॉक का ही आपका एक हिस्सा होता है रिजर्व, यानी कि हमने रखा हुआ है, जैसे वाटर, आपके बुक में भी एग्जाम्पल है वाटर। इन वाटर वी हैव द केमिकल कंपाउंड H2O, है ना, हमारे पास है H2O, यानी कि अगर हमें जरूरत पड़ती है ओवर द पीरियड, आज नहीं कई सालों बाद हमें लगता है हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हम उसको तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन अलग एंड ऑक्सीजन को अलग करके वी कैन यूज इट। राइट नाउ ऑल्सो वी यूज द गैसेस, वी यूज मेनी, जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज बनाते हैं तो वी यूज नंबर ऑफ गैसेस, लेकिन वो जो यूज कर रहे हैं वो पोटेंशियल है, वो डेवलप्ड है, बट जिनको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, मे बी इन द फ्यूचर वी आर डेवलपिंग द थिंग्स, उनको हम कहते हैं रिजर्व। मतलब स्टॉक एंड रिजर्व दे आर द सेम, स्टॉक रखा हुआ है, उसको हम बाद में तोड़ के रिजर्व में यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई डोंट नो बट over the period this particular question has come in the school many a times and even in the boards also. So अब ये तो हमने पढ़ा दैट हमारे पास अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, मतलब हम उसको क्लासीफाई अलग अलग करते हैं, वी हैव मिनरल्स, वी हैव वाटर रिसोर्सेज, वी हैव टाइडल एनर्जी, वी हैव द फ्लोरा, वी हैव फौना, सब कुछ है। तो देन अगर इतना सब कुछ है तो व्हाई वी आर सफरिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड द प्रॉब्लम इज हम क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं। घर में भी आपको पता है जब कोई चीज होती है ना तो हम उसको खत्म कर देते हैं एक बार में, ये आदत है, दैट्स द ह्यूमन नेचर, इट्स नॉट द नेचर ऑफ ये इसका नेचर है या मेरा, सबका होता है, जब है तो चलो भाई कर लो, मजे कर दो, and then when it is not there what we do is we then cry, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। In the similar manner there is imbalance of relocation of resources, किसी किसी के पास बहुत सारा है तो किसी के पास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक इनटू द, हमारे हम लोग ना ज्योग्राफी में, इन द ज्योग्राफी वी डिवाइडेड द कंट्रीज इनटू फर्स्ट कंट्री, सेकेंड कंट्री एंड थर्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड बोलते, वॉर नहीं, वर्ल्ड। जितने आपके अभी हम रिच कंट्रीज के नेम लेते हैं, यूएस, यूके, यूरोप, these are all the first world countries. Those countries which developed later on, like Russia, they are all called as second world, and India
थाईलैंड, ये जो कंट्रीज अभी भी डेवलप हो रही हैं, इनको हम थर्ड वर्ल्ड करते हैं. एंड व्हाई डू वी कॉल इट लाइक दैट? बिकॉज ये जो है इनके पास पहले से ही रिसोर्सेज थी, इन्होंने उसको यूज कर लिया. दे they have done all the researches also. इन्होंने जो है स्पेस पे बहुत पहले ही दे हैड सेंड दैट, मून पे पहले ही इन लोगों ने भेज दिया. बट हम लोगों को हम लोगों की जो बारी थी वो बाद में आई. सो देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ द रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. किसी के पास बहुत है तो किसी के पास है ही नहीं. एंड दिस व्हाट हैपेंस इज, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज. हम एक्सप्लॉयट करते हैं रिसोर्सेज को, ओवर यूज करते हैं. लाइक आप लोगों को सबको पता है, हम कितनी बार ये बात पढ़ते रहते हैं, हमने तो डिफॉरेस्टेशन पर बनाना. डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को विदाउट रीजंस कट करना. सो दिस हैज रिजल्टेड इन द डर्थ, यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज. और अगर ऐसा ही रहा, आपको भी पता है पेट्रोल के दाम आजकल क्या है. Every second day the petrol price is increasing. And ऐसा ही रहा तो what will happen is there will be a day when we will not be able to. Yes, yeah, of course, Divyansh, you are very. I'll tell you about this. Very good question. I'll tell you. Let me just first finish it off. Then I'll tell you. Now what happens is countries like UAE, जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है. Believe me, हम लोग गए थे दुबई, तो वहां सचमुच में, पहले मैं सुनती थी, लेकिन जब हम वहां गए ना तो हमने देखा सचमुच में वहां तो पानी की बड़ी दिक्कत है. देयर वाटर इज कॉस्टली एंड पेट्रोल इज चीप. इनफैक्ट हम लोग मजाक कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से बॉटल भर के पानी लेकर जाएंगे और वहां से वापस आते हुए पेट्रोल ले आते. दिस इज बिकॉज इट इज इम्बैलेंस. कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, एंड जो है तो हम एक्सप्लॉइट करते हैं. तो what is the core of this? मैं इतना कुछ पढ़ा रही हूँ, क्या है? Many countries have met. There have been many what you call as summits, meetings. एक सबसे बड़ा मीटिंग था जिसको हम कहते हैं अर्थ समिट. वन ऑफ द, मतलब इसमें जो आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी. Which was held in Rio de Janeiro. This was in 1992 and this was to discuss कि हम इस एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोक सकते हैं. ये फर्स्ट अर्थ समिट है, मतलब इसके बाद बहुत सारे हुए हैं. This was the first Earth Summit which was held in 1992 July in Rio de Janeiro. सब लोगों ने कोशिश की कि कुछ तो इसके लिए we are able to get. Then ultimately they all came with Agenda 21. अब अर्थ समिट जो है उसमें कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए दे ट्राई टू से. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द, ये आता आपके, ये वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो है ना, दिस इज यूजफुल इन दिस चैप्टर ऑल्सो एंड द सेम इज यूजफुल इन योर इकोनॉमिक्स चैप्टर ऑल्सो. और आप दोनों में सेम एग्जाम्पल देख सकते हो, मतलब दोनों में सेम सिमिलर क्वेश्चन आपके आएगा. द क्वेश्चन इज सिमिलर इन व्हाट यू कॉल एज इकोनॉमिक्स. मैं जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, उसमें भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी है. Same question and answer is the same because it's a technical language. The development which is made for the present without compromising for the future. मतलब अगर हम अपने पुराने ancestors को देखें, if they had not exploited, तो शायद हम लोग आज डायनासोर्स देख सकते थे. और अगर आज हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे तो हो सकता है आने वाला जनरेशन मछली भी ना देखे. That is sustainable. अब ये तो मैं बोलूंगी नहीं कि चलो बेटा हम लोग आज से जो है घोड़े गाड़ी में बैठते हैं, लेट अस लीव व्हाट यू कॉल एज, गाड़ियां छोड़ देते हैं. ये तो मैं बोल नहीं सकती हूँ. वी कैन नॉट, बट वी कैन यूज इट, बट वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट इट. एंड देन दे ऑल साइंड
एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था एजेंडा 21। दिस एजेंडा 21 आपके पेपर में 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 इज बाय 21, हम तो 22 में आ चुके हैं, द कंट्रीज शुड help each other to fight poverty, to sustain the resources, and also to help each other in eradicating diseases। मतलब एक दूसरे के साथ रहकर पोवर्टी, देन आपके जो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन है वो, जैसे आजकल क्या है ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, देन डिजीजेस बीमारी, एक दूसरे की हेल्प करे एंड दुनिया से इनको खत्म कर दे। दैट इज एजेंडा 21। आपके बुक में राइट साइड में बॉक्स में बना हुआ है। while we will be studying in by the book you can see that। so this is how we have resources, उनको हमने जो है कैसे बचाना है। तो हम कैसे बचा सकते हैं? अब आता है मैम आपने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, we need sustainable development but how can we sustain? ये रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सप्लॉइट करने से रोक सकते हैं? तो वी कैन प्लान रिसोर्स प्लानिंग। 3 मार्कर क्वेश्चन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट 3 मार्क्स में आता है इफ इट कम्स। द राइट द स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग, write the steps in resource planning means when you are having, अब आपके घर में मान लो मैरिज है, तो डेफिनेटली मैरिज है या इफ यू आर हैविंग एनी फंक्शन तो आप प्लान करते होंगे, यार यहाँ जाके खाएंगे, ये मंगवाएंगे, है ना? वी हैव प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। सिमिलरली अगर हमें रिसोर्स को अच्छे से करना है, if we want the resources should be used properly then we can have the planning। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था that in राजस्थान you have ample solar energy, धूप तेज है वहां, but there is lack of water। मैं हम में से हर एक बच्चे को जब हम बोलते हैं कि बेटा पानी की कमी है तो हमारे दिमाग में आता है वो राजस्थान में मटकी लेते हुए लोग चढ़ते हुए जा रहे हैं, because there is water lack, water dearth। but if you go to north east अरुणाचल प्रदेश, वहां पानी फॉरेस्ट भरा हुआ है बट वहां सोलर एनर्जी नहीं है, वहां रोड्स नहीं है, यानी कि एक जगह पे एक चीज ज्यादा है, दूसरी जगह पे दूसरी चीज ज्यादा है, लेकिन एक दूसरे को हम हेल्प नहीं कर पा रहे। तो इन रिसोर्स प्लानिंग व्हाट डू वी डू इज वी आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस। ये गवर्नमेंट करती है। आपने देखा होगा यहाँ पर रिसेंटली उत्तर प्रदेश में देयर वाज अ प्लेस वेयर वी कुड फाइंड पेट्रोल। तो गवर्नमेंट सर्वे करती रहती है एंड बाय सर्वे दे फाइंड आउट द रिसोर्सेस, देन दे ट्राई टू फाइंड उसके प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है वो कैसे यूज कर सकते हैं, उसे कैसे हम निकाल सकते हैं, वेदर इट वुड बी यूजफुल फॉर अस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम उसको जो है मैच करते हैं विद द नेशनल डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया वी हैव गुड एनर्जी रिसोर्स इन सोलर रिसोर्सेज इन राजस्थान, सो वी कैन टेक दैट, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट। सो if we are using the resource planning then to much extent we can stop exploitation। ये हमारा यहाँ तक था बेटा रिसोर्स डेवलपमेंट एंड आपका प्लानिंग। मैम
अब हमने आगे इसमें क्या पढ़ना है, व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट मतलब की फेज, यू विल बी रीडिंग अबाउट व्हाट इज लैंड. देन लैंड में हमारे क्या होता है, वी हैव द फॉरेस्ट. व्हाट इज द फॉरेस्ट एरिया. देन हाउ वी आर डिग्रेडिंग द लैंड, हम लोग लैंड को कैसे खराब कर रहे हैं. ये आपका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सॉइल, इट इज द प्रेटी इंपॉर्टेंट. मतलब आगे जैसे 2-2 मार्क्स के थे, दिस विल बी फ्रॉम 5 मार्कर आपके आ सकता है. इन सॉइल आप लोग पढ़ोगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब वी हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. Then you will be reading the different kinds of soil, or this is your 3 marker as well as map question. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आएगा सॉइल का, that on the basis of the formation in India हमारे पास we are having the different kinds of soil. And last but not the least, in the soil only you will be reading the degradation of soil and the measures to curb. ये आपका जो है एक अलग सा सेगमेंट है इस पूरे चैप्टर में. जैसे स्टार्टिंग में आपका जो था ओनली द वन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. द रेस्ट में कम एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक जैसे आ जाएगा. बट अगर इफ इट इज कमिंग इन द सब्जेक्टिव पार्ट, तो ये वाला जो सॉइल वाला है नॉर्मली इट कम्स इन अ लॉन्गर क्वेश्चन एंड इट इज ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ योर मैप. ये मैप का आपका एक क्वेश्चन है. You may be asked to identify the kind of soil that is available in different parts, right? तो to be very quick, land, हम लोग लैंड में रहते हैं, हर एक इंसान लैंड में रहता है. We have land which is used for agriculture. We have land which is used as forest. Then we have land which is used for building the flyovers, building, वो भी है. We have land which we may not be using, unused, ubad khabad. We may be having land which may have become, जिसको हमने यूज किया एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अभी हमने उसको जो है फैलो छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, जिससे कि उसमें फर्टिलिटी वापस आ जाए. सो अगर हम देखते हैं तो दिस इज हाउ अ लैंड इज यूज्ड. According to the government, according to the forest survey of a country, 33% of the total area should be used as forest. हमें खाली छोड़ना चाहिए जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बना रहे. बट फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, दैट द पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग, उसकी वजह से द फॉरेस्ट इज बिकमिंग स्लोली उसको हम कम कर रहे हैं. एंड वी आर हैविंग अराउंड 27-28%. अभी तो फिर भी एरिया बड़ा है फॉरेस्ट एरिया. अभी रिसेंटली आई हैड स्टडीड दिस. एग्रीकल्चर के अंदर डू यू थिंक हम सारे एरिया को यूज करते हैं? नो. देयर आर एरियाज जिनको हम यूज करते हैं वंस, एंड समटाइम्स द सेम एरिया माइट बी यूज ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. तो हम इसको जो है ग्रॉस सोन एरिया एंड नेट सोन एरिया के नाम से जानते हैं. दिस कम्स इन 1 मार्क. द नेक्स्ट इज सॉइल. आपने देखा होगा, मतलब अभी आप देखोगे हर एक में, जैसे आप में से जो बच्चे केरला रहते हैं, आपको पता है वहां पर आपके नारियल बड़े आराम से आते हैं. आप दिल्ली के अंदर वैसे नारियल का पेड़ नहीं लगा सकते हो. In the same manner, you might be finding a special kind of mangoes in one area, you might be finding a special kind of mango in another. नागपुर में oranges बहुत आते हैं. Why? This is because of the presence of soil. Soil is a
बीइंग, लिविंग बीइंग, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग बीइंग? जैसे हमें टाइम लगा, आप बचपन में इतने से थे और अब इतने बड़े हो गए, आपको फैक्टर्स, आपकी फैमिली का फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी आपकी शक्ल, आपका बिल्ट अप, जैसे मेरी सिस्टर का बेटा वो इतना लंबा है, उसको ऐसे करके देखना पड़ता है, दैट इज बिकॉज उसके फादर लंबे हैं. सो द पेरेंटल फैक्टर्स, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली सॉइल भी उनका पेरेंटल, नीचे जो रॉक होता है मिट्टी के नीचे वो, देन वहां गर्मी, सर्दी, बारिश, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कितना है, वहां किस तरीके के एनिमल्स रहते हैं, वहां किस तरीके के प्लांट्स आ सकते हैं, इसके ऊपर आपका एक सॉइल जो है वो फॉर्म होता है. दिस कम्स एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. अगर आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो. नाउ ऑन दिस बेसिस इन इंडिया वी हैव alluvial soil, we have red and yellow soil, we have black soil, we have desert soil, laterite soil, and last but not the least montane यानी कि forest soil. हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करते हैं एंड दिस विल बी ऑल्सो योर मैप क्वेश्चन. The one which is rich in all kinds of nutrients, alluvial. Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, then parts of Tamil Nadu and Andhra. Red and yellow soil, Chota Nagpur area, Chhattisgarh, Jharkhand, जहां आपके आयरन ज्यादा होते हैं. जब पानी हाइड्रेटेड फॉर्म होता तो ये रेडिश कलर दिखता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है. ब्लैक सॉइल, ये वो सॉइल है जो गोंडवाना टाइम में जब आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उसकी वजह से. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगर और कॉटन सॉइल बिकॉज कॉटन इसमें आ सकता है. यस. एंड डेजर्ट, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, जहां आपका सैंडी है, जहां बारिश कम है. और जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था केरला का, लेटराइट सॉइल. एंड लास्ट बट नॉट द सॉइल माउंटेन यानी कि जो फॉरेस्ट सॉइल, इसको हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं. दिस विल बी योर मैप क्वेश्चन. विद दिस आई विल बी finishing this session here itself.